بلیٹن کے آغاز میں شامل کریں گے۔ موسم میں پیدا ہونے والے بچے ہائپوتھرمیا کا شکار ہونے لگے۔ ماہ امراض بچہ ڈاکٹر افتخار بھٹی کہتے ہیں والدین پیدائش کے وقت بچوں کو نہلانے سے گریز کریں۔ مزید جان لیتے ہیں طاہر جویا سے۔ بالکل جی، موسم کی شدت کے ساتھ جہاں پر نزلہ زکام اور کھانسی کی بیماریاں بڑوں میں بھی بڑھ رہی ہیں، خصوصاً بچے اور جو بزرگ ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو نیو بورن ہیں، جو ابھی پیدا ہوئے ہیں بچے اور جو آنے والے دنوں میں پیدا ہونے ہیں، ان کو کیا احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت چلڈرن اسپیشلسٹ افتخار بھٹی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں سر، کیا پریکاشنز لینی چاہیے اور والدین کو خاص کر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچہ جو ڈلیور ہو رہا ہے نا، جہاں پہ ڈلیوری ہو رہی ہے وہ پتہ ہو، تسلی ہو کہ وہ ٹرینڈ ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے، تو ٹرینڈ کوئی ڈاکٹر یا برتھ اٹینڈنٹ سے ڈلیوری کرانی چاہیے۔ اور بچے کو ریسیو کرنے کا نا، وہاں بچے کی ریسسیٹیشن کا کچھ نہ کچھ سامان موجود ہونا چاہیے۔ بچہ پیدا ہوتے اکثر اب جیسے سردی ہے تو بچہ ہائپوتھرمیا میں چلا جاتا ہے، بچہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بچہ ٹھنڈا ہوا نہیں تو پھر مسئلے مسائل اس کے نا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس موسم کے لحاظ سے کہ بچے نا ہائپوتھرمیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہی میرا میسیج یہی ہے کہ بچے کو وہیں پہ ڈلیور کرائیں جہاں پہ ٹرینڈ ڈاکٹر ہے یا کوئی برتھ اٹینڈنٹ ٹرینڈ ہے، اور بچے کو ریسیو کرنے کا پراپر ان کے پاس سامان موجود ہے۔ ادروائز پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھ لیا ہمارے پاس بچے پھر کنجینیٹل نمونیا کے ساتھ، سانس کی تکلیفوں کے ساتھ پھر بچے ہمارے پاس داخل ہو رہے ہیں۔ جی تو سر یہ آگے موسم کی شدت بچے رہے ہیں طاہر جوئی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ موبل آئل، بریک لیدر، گراڑی سیٹ، ٹائر اور دیگر اسپیئر پارٹس کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ ہونے لگا۔ مزید جانتے ہیں رانا بلال سے۔ جی رانا بلال، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ بات کریں موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس کی قیمتوں کی تو موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس کی قیمتیں اس وقت آسمان سے باتیں کر لگی ہیں۔ ان کی قیمتوں میں ایک سال کے دوران 50 سے 60% اضافہ دیکھنے میں ہے۔ قیمتیں بڑھنے سے جہاں دکاندار بھی پریشان ہے، وہیں عام شہری بھی پریشان ہے۔ کیا کہیں گے، دکان پر آئے ہوئے موٹر سائیکل کی چیزیں خریدنے کے لیے، اشارہ خریدا ہے، فرنٹ لائٹ کی وہ کور لیا ہے۔ کیا کہیں گے، قیمتوں میں ایک سال کا ملتا تھا، یہ پہلے ملتا تھا 10 روپے کا، اب یہ 60 روپے کا ہو گیا ہے۔ یہ جو لیدر تھا یہ ملتا تھا 80 روپے کا، اب یہ 200 روپے کا لیدر ہو گیا۔ یہ مہنگائی کا دور آ گیا، پیچھے اشارے ٹوٹے ہوئے۔ آئل ملتا تھا 200 روپے کا، اب 500 روپے کا آئل ہو گیا۔ غریب آدمی بیچارہ پس گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کرے، تھوڑا سا ریلیف دے تاکہ گاڑیوں میں، ٹائروں میں، اشاروں میں، ہینڈلوں میں کوئی ہمارے کو ریلیف مل سکے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ ان چیزوں میں کمی کرے تاکہ جو شہری بیچارے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، جو ضرورت مند پریشان ہو رہے ہیں۔ مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، نلاں بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں۔ آپ کیا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ رانا بلال آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ میاں والی میں کھاد بحران شدت اختیار کر گیا۔ کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے خوار فرض جائیداد پر 5 گٹو کھاد فراہم کی جانے لگی۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، میاں والی میں کھاد بحران شدت اختیار کر گیا۔ کاشتکار پریشان کیونکہ پہلے پانی کا وقت آ چکا ہے اور اس پہ کھاد لگانا انتہائی ضروری ہے۔ کاشتکاروں کو ان دنوں کھاد کے حوالے سے کس قدر مشکلات کا سامنا ہے، کاشتکاروں سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لفظوں کتنی مشکل ہے کھاد کے حوالے کیا؟ سر جی مشکل ہے، ایک تو آدمی بھائی فرضات گن کے وہ فرضات ملتا نہیں، اتنے پنجو کمپیوٹر سینٹر 500 روپے گورنمنٹ فیس گن دی ہے، اور اتنے لینے لگ کے 5 گٹو فرض مل دین اور کھاد مہنگی پوی بہت زیادہ۔ ایک تو ضلالت ہے، ایک فرض کا 500 روپیہ اتنے بھر کے دیو، پت کرائے بھرو، اس تو بہتر ہے لینے لگی کھلے کھلی دین 50 روپیہ زیادہ گن تھائی دلالت بنے اگاں واسطے مشکل نہ بنے۔ پانی لاونا ہوا آج تو ہفتے بعد لگتا ہے، کل اساں آمدن کتوں گنسوں۔ جی یقینی بات ہے، کھاد کا یہی صورتحال رہی تو پیداوار میں بھی کافی فرق آئے گا۔ ایک اور بھائی ہیں، آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں، آپ کیا کہیں گے کھاد کی؟ بھائی سویرے 8 بجے دے آئے کھلے لینا چ لگے کھلے کھاد نہیں ملتی پئی، ہوں لیتے ہی نہ صرف 5 گٹو وہی فرض جائیداد اتنے دیتے ہیں۔ کوئی صاف شفاف کام کرے نہ وڈے ذمہ دے گھر پہنچ ویندی ہے تے اساں چھوٹے ذمہ دار رل گئے ہیں اس واسطے۔ جی بالکل، جس طرح ظفر آکے بھائی آنا کہ اس طرح بالکل ہی آ رہی کہ جڑے امیر لوگ ہیں انہوں نے گھر راتوں رات ڈالے آنے اڈے پہنچ وے تے غریب عوام لینے لگی کھلی، وہ بھی 1-2 بجے تک اتنے لینے کھلے، پتہ مل سی کہ نہ مل سی یہ بھی کنفرم نہیں، کیونکہ جس ٹائم کھاد دا ہوں ٹائم ہی پانی کھاد لاون دا کھاد مل بھی نہیں رہی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان دنوں کھاد لگانے کا وقت ہے، کھاد نہیں مل رہی، اور سب سے بڑا ایشو ایک تو یہ ہے
कि 500 रुपए खाद्य करार रही तो गंदम की फसल तबाह हो जाएगी। अख्तर मिजाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप। टीचिंग अस्पताल की डेली वेजेस मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर सराप एहतजाज, मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए नारेबाजी। मजीद जानते हैं आशीष पाक से। टीचिंग हस्पताल के डेली वेजेस मुलाजमीन गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं और बिलाखिर मुलाजमीन का जो सब्र जो है वो अब जवाब दे चुका है। मुलाजमीन बाकायदा तौर के ऊपर एडमिन ब्लॉक के सामने मौजूद हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात हमारे यही है कि 4 महीने हो गए हैं कि सैलरी नहीं आ रही। हमारे भी बाल बच्चे हैं। अब हमारे ये हालत हो गई है कि ड्यूटी पे आने के लिए हमारे पास किराए के पैसे नहीं होते। हम हर रोज़ किसी से लिफ्ट लेने के लिए आधा घंटा रोड पे ठहरते हैं, कोई जानकार आ जाए उनके साथ चढ़ के इधर ड्यूटी पे आ जाएं। अब हमने सोचा यही हुआ है कि 48 घंटे के अंदर अगर हमारी सैलरीज नहीं आई तो हम मुकम्मल हड़ताल करेंगे। जी बिल्कुल, हड़ताल का अंदिया दिया गया है। वाईडीए भी इस एहतजाज में शरीक है। बात करते हैं, सदर हैं वाईडीए के डॉक्टर आगा शहजाद। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के बारे में? जी बिल्कुल, वाईडीए डेरा गाजी खान हम मुकम्मल तौर पर अपने जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं हमेशा से इनके साथ हैं, अभी भी साथ हैं। जब 4 महीने से इनका ये मसला चल रहा है, हम डे 1 से इनके साथ हैं। एमएस साहब, प्रिंसिपल साहब से मुसलसल हम राब्ते में हैं। अभी भी हमें यही कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर इनका जो बजट है, सेक्रेटरी हेल्थ ने जो फाइल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट मूव कर दी है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट है। तो अभी हमने यही सोचा है कि ये 4 महीने से 1 दिन 2 दिन कर रहे हैं, हम 48 से 72 घंटे का वेट कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अनाउंस की हुई अपनी हड़ताल। हम उस हड़ताल में पहली सफ में बैठेंगे इंशाल्लाह। वाईडीए डीजी खान, अब्दुल मनान भाई चेयरमैन साहब, हमारे डॉक्टर दोस्तली जनरल, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी पहले सफ में बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आशिक इशफाक आपका हमें अपडेट करने के लिए। किसान पीपल्स पार्टी मुल्तान सिटी और जिला की ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब मुल्तान से नवाज शहर चौक तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब खारिजा पॉलिसी के हक में रैली निकाली जा रही है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बिल्कुल, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब खारजा पॉलिसी के बायस जो है वो मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के हवाले से जो है वो रैली निकाली जा रही है। मुल्तान में भी जो है वो प्रेस क्लब से नवाज शहर चौक तक रैली निकाली जा रही है। कारकुनान की कसीर तादाद जो है वो इस वक्त रैली में मौजूद है। खवातीन की बात करें, बड़ों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो सबकी जुबान पर जो है वो बिलावल भुट्टो जिंदाबाद का जो है वो नारा गूंजता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ कारकुनान मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद रैली निकाली जा रही है, इस वाले से? जी, आज पूरे मुल्क की तरह मुल्तान में भी रैली निकाली गई है कि ये रैली है वेल डन बिलावल भुट्टो, वेल डन। बिलावल भुट्टो जिसने एक मसला कश्मीर को उजागर किया, इसने मोदी का दहशतगर्द चेहरे को अवाम के सामने बेनकाब किया, बहादुर जुर्रतमंदी अपनी भरपूर सलीतों का मुजाहरा किया, जिसने अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी की आकाश की। और वो खारजा पॉलिसी जो कि भुट्टो खानदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा शेवा रहा है। पिछली दौरे हुकूमत में इमरान खान के दौर में मसला कश्मीर को सियासत खाने में डाल दिया गया था। इमरान खान वही जिसने दुआ मांगी थी कि अल्लाह करे कि मोदी जो इलेक्शन में जीते, ताकि जब ये वजीर आजम बनेगा मसला कश्मीर हल होगा। लेकिन मसला कश्मीर होने के बावजूद मसला कश्मीर हमसे छीना गया। आज हम बिलावल भुट्टो के साथ हैं, कदम कदम। हम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं बल्कि पूरी कौम जो है उसे सराहती भी है और उस कदम कदम उसका साथ भी है। कदम साथ देते हैं। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद रैली में शरीक है? आज हम अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं कि उनकी जो शानदार खारजा पॉलिसी थी वो बहुत ही फ्रूटफुल साबित रही, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए। और ख़ास तौर पे हम गुजरात के कस्साब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर जो वज़ीर ख़ारजा उसको एक जैसा ना समझे। ये एक लीडर जो नाना है उसका नवासा है और लीडर जो माँ है उसका बेटा है, और उसी की बेहतरीन ख़ारजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान जो है वो 4 कदम आगे बढ़ रहा है। जी भुट्टो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी के हवाले से जो है वो आज रैली निकाली जा रही है? देखें जी, जब 20 साल पहले नरेंद्र मोदी गुजरात का वज़ीर आला बना था तो उसने उस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद, उस वक्त मुसलमानों को मरवाया और हमारी बहनों की इज्जतें लुटवाई गई। आज जब वो वज़ीर आज़म बना है तो आज भी कश्मीर उन्होंने अपना इंडिया का हिस्सा बना लिया। एक आर्टिकल के जरिए उन्होंने कश्मीर में जितने जुल्म कर रहे हैं, जितने हमारे माओ बहनों को मरवा रहे हैं, तो एक बयान पे बिलावल भुट्टो के एक जो अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने बयान दिया है, उस बयान के बाद जो है ना वो तिलमिला उठे हैं। आज बिलावल के वो उनको नजर आतिश कर रहे हैं पुतले। तो हम बिलावल भुट्टो साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एक कामयाब खारजा पॉलिसी के जरिए ये किया। आज बिल्कुल जो इस वक्त रहनुमा है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना था कि कामयाब खारजा पॉलिसी पर जो है वो आज हम रैली निकाली जा रही है। और जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में बिलावल भुट्टो ने भारत का जो चेहरा वो बेनकाब किया, उसकी कामयाब खारजा पॉलिसी पर रैली निकाली जा रही है। सैयद ज़ुहैब बुखारी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कॉल पर बहावलपुर में कारकुनान सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब बहावलपुर के बाहर कारकुनान ने एहतजाज करते हुए कहा, मोदी जुबान को लगाम दे। भारत में बिलावल भुट्टो के पुतले जलाए जाने के अमल की मजम्मत करते हुए। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कॉल पर बहावलपुर प्रेस क्लब के सामने पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है। जानते हैं फारूक मोहम्मद साहब, बताइएगा क्यों सरापा एहतजाज है? बिलावल भुट्टो साहब ने आलम इस्लाम की तर्जमानी की और मोदी ने, इंडिया ने जो बकवासात किए हैं बिलावल भुट्टो साहब के बारे में, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने आलम इस्लाम की जो तर्जमानी की है आज तक किसी ने नहीं की। इसी वजह से हिंदू परेशान है, मोदी परेशान है। मोदी पर लानत भेजते हैं हम। नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिलावल भुट्टो की जो स्पीच है उसके हवाले से इंडिया में बिलावल भुट्टो को काफी यूं कह ले कि उसके हवाले से बात की गई, तो उसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। पूरी वजाहत करें ना, आप लोग पूरी वजाहत नहीं करते, बताएं क्या एहतजाज इसलिए किया जा रहा है आज पाकिस्तान के अंदर कि हमारे की लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब उनके वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द पैदा हुए हैं, उसामा बिन लादेन की बात की, तो मेरे कैद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उठकर कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से नहीं होती, दहशतगर्दी हिंदुस्तान से होती है। और हिंदुस्तान का जो गुजरात का कसाई है उसने मुसलमानों का कत्लेआम किया और उन्होंने अमेरिका ने उस वक्त उसकी पाबंदी लगाई अपने मुल्क के अंदर। आज वो उस मुल्क का वजीर आजम है, उसको क्यों नहीं मारा जाता? पेश करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को। इस वक्त सरापा एहतजाज है पीपल्स पार्टी के कारकुनान प्रेस क्लब बहावलपुर के बाहर। इनका कहना है कि भारत का जो सरबराह है मोदी, उसके खिलाफ। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की नाअहली। पंजाब भर में 1022 प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार। प्राइवेट स्कूल मालिकान की अथॉरिटीज से रजिस्ट्रेशन का अमल तेज करने की अपील। 1 साल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवा रखी है, ऐसा कहना है स्कूल मालिकान का। मुख्तलिफ एतराजात लगाकर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाती हैं, जबकि निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन का अमल बाकायदगी से जारी है। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक SOPs मुकम्मल ना करने वालों की रजिस्ट्रेशन रोक दी जाती है। स्कूल एजुकेशन का ऐसा कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की नाअहली पंजाब भर में 1022 प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, हजारों की तादाद में जो प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन है वो इल्तवा का शिकार है और इसमें पंजाब भर के जो 36 अजला हैं वहाँ पर 1022 स्कूलों की रजिस्ट्रेशन अभी तक जारी नहीं हो सकी। हालांकि 1 साल गुजर चुका है, ये रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार है और नए स्कूल जो है वो बिल्कुल पानी। और इस हवाले से जो प्राइवेट स्कूल तशवीश का इजहार किया और उन्होंने मुतालबा किया है कि रजिस्ट्रेशन का अमल तेज किया जाए ताकि स्कूलों को रजिस्ट्रेशन मिल सके और वहाँ पर बच्चे जो है वो दाखिल किए जा सके। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि एक तरीकाकार है, SOPs जब तक स्कूल मुकम्मल नहीं करते, बिल्डिंग हाइजीन सर्टिफिकेट और बिल्डिंग के हवाले से अप्रूवल्स नहीं ली जाती और हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि बिल्डिंग का लेना होता है वो नहीं लेते, तब तक इनको रजिस्ट्रेशन जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ताहम बाकायदगी के साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। उनका कहना है कि बच्चों की जिंदगी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए।